بعد کلمات استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مولانا مولوی محمد رشادی صاحب معلم دارالعلوم صفت اللہ عطا کا تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ کلمات استقبالیہ پیش کرنے سے پہلے میں کچھ قرآن اور احادیث مبارکہ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کے چہرے میں سرور چاہتا ہوں۔ ابھی مجلس سج کر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، آپ کے چہرے میں کچھ رونق پیدا ہونا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ محفل جو سجی ہے اللہ والوں کی نسبت سے سجی ہے، اس لیے علامہ جلال الدین رومی علیہ رضوان فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک زمانہ، ایک لمحہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جانا، ایک لمحہ کسی ولیوں کی صحبت میں، سنگت میں، ان کی مجلس میں بیٹھ جانا بہتر ہے 100 سال بے ریا عبادت کرنے سے۔ بے ریا آپ سمجھتے ہیں، ریاکاری کے بغیر۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھاوے کے لیے اپنے نمازوں کو جو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو ریاکاری کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے، اس عبادت کا 100 سال حصہ اس سے بہتر ہے ایک لمحہ آپ کسی ولی کے بارگاہ میں بیٹھ جائیں۔ اور محترم حاضرین، ہم ہر وقت کی نماز میں مانگی جانے والی قرآنی دعا یہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، پوچھتے نا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ پھر دوسری آیت میں فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے میں چل کر، جس راہ راست میں چل کر تیرے خاص بندے انعام کے مستحق ہوئے۔ اے اللہ تیرے انعام پانے والے وہ بندے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب اس کے تفسیرے میں، تفسیر میں اگر ہم دیکھیں گے تو سورۃ النساء آیت نمبر 60 پر 9 69، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے تفسیر کو فرماتا ہے قرآن ہی میں، فَأُولَئِكَ، غور طلب چاہتا ہوں، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص انعام کو نازل فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، والصادقین، صادقین کی جماعت ہے، والشہداء، شہیدوں کی جماعت ہے، والصالحین، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی صحبت، ان کی محبت، ان کی دوستی کیا ہی بہترین دوستی ہے۔ کون فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ دیکھو صحبت کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا۔ ایک شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کن، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں صالح بنا دیتی ہے، وہ صحبت آسی ترا آسی کن، گنہگاروں کی صحبت
तुम्हें गुनहगार बना देती है। इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है, सुनेंगे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाया, जिसको जिक्र करते हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, वान अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस साअ फ़क़ाल मत साअ या रसूल अल्लाह, क़ाल वमाज़ा अअदद्त लहा, क़ाल ला शैअन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, फ़क़ाल अंत मा मन अहबब्त, अंत मा मन अहबब्त। वक़ाल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फमा फरहना बिशैइन व फरहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्त शैअन अहबब्त फ़अना उहिब्बु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमर व अर्जू अन अकून माहुम बिहुब्बी इयाहुम व इल्लम अअमल बिमिस्लि आमालिहिम, रवाहु बुखारी। इस हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में एक सहाबी हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मत साआ, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमाज़ा आदत लहा, अय भाई क़यामत तो आने वाली है उसके वक्त मुकर्ररा पर, जरा ये तो बताओ कि तुम क़यामत के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखे हैं, क़यामत के लिए क्या तैयारियां की हैं? वो सहाबी से हुजूर पूछते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई ऐसे आमाल नहीं जो क़यामत में मैं अपने आप को फतह पा सकूं, फलाह पा सकूं, कामयाबी हा सकूं। हाँ एक चीज बचा सकता हूं। क़ाल ला शैअन या रसूल अल्लाह, कोई शय मेरे ऐसे पास नहीं, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। क्या करता हूं? सिर्फ मेरे पल्ले आमाल क्या हैं? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मा मन अहबब्ता, जा मेरे भाई तू क़यामत में उन्हीं के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत किया करता था। अब दुनिया में किसकी सोहबत में रहे, किसकी संगत में रहे, क्या वो आखिरत में भी वो काम आएगी? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी इरशाद फरमाते हैं, फमा फरिहना बिशैइन, हमें किसी चीज की भी इतनी ख्वाहिश और इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान से। और हजरत अनस खुद फरमाते हैं, यकीनन मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं और हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं और हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन, और अर्जू मैं यकीन करता हूं कि मैं उनके साथ रहूंगा, अगरचे कि मैं उनके जैसे अमल ना करूं, अगरचे मैं उन जैसा अमल ना करूं, फिर भी किनके साथ रहूंगा? उन्हीं के साथ रहूंगा। और ये एक हदीस को बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए नामदार सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, यूं बयान फरमाते हैं, नेक सोहबत और बुरी सोहबत की मिसाल, मसलुल जलीस सालिह वस्सूई, बुरे लोगों यानी नेक लोगों और बुरे लोगों के मजलिस में बैठने की मिसाल इस तरह है, कहामिलिल मिस्की व नाफिखिन कैरी, यानी कोई अगर मिस्क के दुकान वाले के पास, इतर के दुकान वाले के पास कोई अगर जाता है, तो अगर वो इतर तुम चाहे खरीदो या ना खरीदो, तुम तक वो इत्र की खुशबू पहुंच जाती है। कोई सैंपल के तौर पर लगाकर छोड़ देता है और वो इत्र की खुशबू ऐसे ही तुम्हारे पास, ये वो खुद लगा दे या तुम उसको खरीद ले,
बहरहाल तुम तक इतर की खुशबू आ ही जाती है। ये नेक लोगों की मिसाल है, नेक सोहबत की मिसाल है। उनके संगत में, मजलिस में बैठने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके रंग में रंग मिला देता है। और बुरे सोहबत की मिसाल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोहे की भट्ठी की मिसाल। कोई आग के धोने की वजह से लोहे की भट्टी में जिस तरह हम देखते हैं कोई हथियार वगैरह कोई इस तरह बनाते हैं, तो उसकी जगह बैठने की वजह से जो आग से निकलती है धुआं, जिसकी वजह से हमारे जो लिबास हैं ये काले पड़ जाते हैं, वरना वो आग की बदबू तो तुम्हारे साथ रहती है। ये बुरे लोगों की मिसाल है। चुनांचे कुरान में जा बजा इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन कल बंदा जो दोज़ख में जाने के बाद, दोज़ख को जाने से पहले ये कहेगा कि काश मैं उसके साथ दोस्ती ना किया होता, लम अत्तखज़ुहु फलानन खलीला, काश के मैं उसके साथ दोस्ती ना किया होता, कितना बेहतर है। इस तरह की बातें वो करने लगेगा। तो चाहिए कि हमें नेक सोहबत, नेक संगत में रहने की हम कोशिश करें। बस यही बात, यही उन्वान पर आज रोशनी डाली जाएगी। बस मैं गुलामान अहल बैत की जानिब से और सज्जादा नशीन साहब जो आस्तान सिबगतुल्लाहिया के हैं, उनके जानिब से भी आए हुए जितने भी मेहमानान हैं, जिनको मैं खैर मकदम करता हूँ, अहला व सहलन मरहबा कहता हूँ। ख़ासकर स्टेज पर जलवा अफरोज़ सरखाजी चित्तूर हज़रत मौलाना मौलवी हाफिज़ सैयद शाह कमालुल्लाह ज़ुहूरी लतीफ़ी जुनैदी साहब जो चित्तूर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। और उसके बाद स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए हज़रत मौलाना मौलवी सैयद शाह फरीदुद्दीन कादरी लतीफ़ी काजी दारुल्लूम लतीफ़िया हज़रत मकान क़ुत्ब वेलूर, जिनका भी हम खैर मकदम करते हैं। और उसके बाद हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अली साहब कादरी वेलूरी का भी हम खैर मकदम करते हैं। और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी हम खैर मकदम करते हैं। और हज़रत मौलाना मौलवी हाफिज़ नवाज शरीफ साहब जमाली, जिनका भी हम खैर मकदम करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और जितने मेहमानान यहाँ तशरीफ़ फरमा है और बाहर पिंडाल में बैठे हुए हैं, सबका हम खैर मकदम करते हैं गुलामान अहल बैत की जानिब से, अहलन व सहलन मरहबन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।